Good afternoon, everyone. Let everyone join and we'll begin in 2 minutes. Those who want to participate in discussion can click on raise hand. Good afternoon, here. Good afternoon, sir. Good afternoon, Saksham. Good afternoon, sir. Anshika, good afternoon. Good afternoon, sir. Who is this SS Vlog Sony? ये कौन है? संयम है शायद सर. इसको रिमूव कर रहा हूँ. ओरिजिनल रियल नेम से आना है सबने. Good afternoon, Saloni. Good afternoon, Madhav. Good afternoon, sir. Okay, shall I log the meeting now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Meeting logged. Okay. Good afternoon again. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. What had we discussed in the previous class? So we discussed about the economic environment, the technological environment. Technological Okay. environment and economic environment we had discussed. In economic Yes, sir. environment, the first point was Fiscal policies. existing structure of economy. Oh, yes, sir. Yes, sorry. It's on your screens right now. Second is Rates and savings and investment. rates of saving and investment. Third is Extent and quality of infrastructural facilities. Infrastructure facilities. right. Fourth is Interest rates. fifth is Inflation. sixth Inflation. Income Income level. income Income level. level. Then economic policies. And then the policy. Policies of the government. Under economic policies. policies, we have Fiscal Fiscal policy, monetary policy, and exim policy. yes. This far we had discussed in the previous class. Any doubts up to We here? have not discussed exim policy. Exim policy, I told you, is the export-import policy. EX comes from exports, IM comes from imports. Right? So exim policy is the export-import policy. Whenever government liberalizes certain exports, lift some duties on exports, it is good for the exporters and vice versa. Similarly, whenever the government liberalizes some imports, removes some duties on imports, it is good for the importers. And whenever the taxes and duties on imports are increased, it affects adversely the importers. Clear? Yes, sir. Okay, any other doubt? No, sir. Fine. So this was about economic environment. One important concept related to economic environment is demonetization.
which we all experienced some time back. Yes, sir. Yes, sir. When was it? December. December It 2016. was November 8th. November I think it was 8th, 8th of November 2016. Right. What exactly do we mean by demonetization? What is it? Anyone? So, Yeah. सर जो सर मतलब जो ऑलरेडी मनी है उसकी वैल्यू खत्म हो जाना. Okay. Saloni. Yes, sir. Okay. Right. Anything else? Anyone? Sir, all the previous 500 and 1,000 rupees notes were discontinued. Okay. Fine. So demonetization, what it means is discontinuing currency notes or coins of a particular denomination as legal tender. Clear? I repeat, discontinuing currency notes or coins of a particular denomination as legal tender. Legal tender मतलब legally अब वो valid नहीं रहेंगे. कौन से denomination के government ने discontinue किए थे? 500 and 1,000 notes. Yes, old 500 and 1,000 rupees currency notes were discontinued. Meaning of demonetization clear? Yes, sir. Yes. Means those currency notes or coins which have been discontinued, they can no longer be used for any transaction. Now we come to features. First feature is tax administration measure. Now what do we mean by this is that black money, can anyone tell me what is black money? Sir, it is the money which was supposed to be given as taxes, but then it is kept with the person. The person steals it from the government. Right. It is the money or income on which tax has not been paid. Right. Suppose the income tax says that any income above 2,50,000 is taxable, and someone having an income of 3 lakh does not disclose his income to the government and says my income is less than 2,50,000. So this person has evaded tax on 50,000 rupees. 2,50,000 तो exempt था. बाकी 50,000 पे जो उसे टैक्स पे करना था वो उसने नहीं पे किया. Now this 50,000 rupees, let us say he was to pay 10% tax on it. Means how much? 10%. कितना हुआ 50,000 का? 5,000. 5,000. Yes, simple 5,000. तो 50,000 पे उसे 5,000 टैक्स पे करना था, लेकिन उसने अपनी वो 50,000 की इनकम शो नहीं की, and he did not pay that 5,000 tax. So by not paying 5,000 tax, his entire 50,000 income becomes black money. It becomes illegal, right? And hiding this income from the government is illegal. If ever the government comes to know about it, they can impose a heavy penalty on it. They can charge a high interest. The person may even be imprisoned for this. So black money is the income which has not been disclosed to the government, on which tax has not been paid. Now with demonetization, what happened? Many people who were since many years, they were hoarding black money. They were not disclosing their full income, and they were keeping some black money, means on which tax has not been paid. And generally this black money used to be in high denomination notes, 500, 1,000 notes stuffed in their lockers or in their homes. With demonetization, what happened? Now they
all that money became useless. Why? Because they can no longer use that money. It has been discontinued. They can't even deposit that money in their bank account, because if you deposit any amount, any big amount in the bank account, then you will have to disclose from where did you get that income. कहां से आई वो इनकम आपके पास, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डिस्क्लोज कैसे करेंगे? उन्होंने तो छुपा रखा था अभी तक. डिस्क्लोज करेंगे तो फंसेंगे कि भाई आपके पास ब्लैक मनी थी, और डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वैसे फंस गए क्योंकि उन नोट्स का वो कुछ कर ही नहीं सकते. सो मैनी पीपल burned those notes, many people threw those notes in rivers and drains. This was a tax administration measure, right? But what about the people who might have changed their currency into gold or something? yes, उनका तो पकड़ा ही नहीं गया होगा. हाँ, ऐसा भी कई लोगों ने किया था, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सारे ज्वेलर्स से रिकॉर्ड ले लिए थे कि आपने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद नेक्स्ट कुछ दिनों में जितनी भी ज्वेलरी सेल करी है सबके रिकॉर्ड्स दो, किस किस को सेल करी है. और ज्वेलर्स के पास भी वो जो मनी आ जाएगी ज्वेलरी बेच के, उन्हें भी तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ना कहां से आई, उन्हें तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. तो वहां से गवर्नमेंट ने कईयों को ट्रैक कर लिया था. ये क्लेवरनेस कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, पर वो उस तरह से फिर पकड़ में कई आ गए थे. No sir, but I was asking, if I did not give my taxes, my share of taxes, and I converted that money right now into gold or as an investment or something, तो sir मैं तो उस चीज से पकड़ी नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि मैंने how can they make अगर it out? आपने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस होने से पहले ही आप कन्वर्ट कर चुके थे उसे गोल्ड में, तो पकड़े जाने के चांसेस कम हो गए, अनलेस एंड अनटिल कोई आपकी कंप्लेंट कर दे. Okay sir. ठीक है ना? या Sir, how can I come from the government? Speak again. Sir, how can a person hide his income from the government? The government can keep regular check on the transactions they do. Yes, this is Anshika. Yes, sir. हाँ, अपना नाम पहले बोल दिया करो. हाँ, Anshika, what happens is, suppose I am working in this school NKVPS. ठीक है? Now my salary, yes, whatever I get from the school, it is on records. It is coming directly in my bank account. I cannot hide it. Right? Yes, sir. But suppose I do any part-time business and I am earning some income from there also, and I am taking all that money in cash. Now, if a person does not show that income in his or her income tax return, that becomes black money. मैम सर, बट जो आपको पैसे दे रहा है उसके पास तो रिकॉर्ड है उस चीज की कि हाँ मैंने इस बंदे को सैलरी दी है या फिर मतलब मैंने इसको पे किया है. नहीं, कैश में अगर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है उनके पास रिकॉर्ड होगा. ठीक है? आप में से कई स्टूडेंट्स ट्यूशंस पढ़ते हैं. Yes, sir. तो ट्यूशन सेंटर्स में आप फीस किस मोड से पे करते हो, कैश या चेक या क्या? सर कभी कैश कभी चेक. ज्यादातर कैश है ना. जब आप कैश पे करते हो तो क्या आपको प्रॉपर कैश रिसीट मिलती है हर बार? नो सर. अगर आपको रिसीट मिल रही है तो इसका मतलब वो रिकॉर्डेड है. अगर रिसीट नहीं मिल रही तो यू डोंट नो कि वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही. उसको वो ट्यूटर्स अपनी इनकम में शो करेंगे या नहीं करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो वो ब्लैक मनी हो जाएगी. उसका आपने भी कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट को नहीं देना है, और अगर उन्होंने भी नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी हो जाएगी. ठीक है? ओके सर. इसी तरह से many a times when you go to buy anything from a shop, many a times the shopkeeper insists कि आप बिना बिल के ले लो जी, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा. तो बिना बिल के अगर वो चीज आप खरीद रहे हो कैश में, तो आपने तो कोई रिकॉर्ड किया नहीं उसे, गवर्नमेंट को आपने तो कहीं शो किया नहीं. अब वो भी अगर शो नहीं करेगा तो वो उनकी ब्लैक मनी हो जाएगी. यस सर. ओके. तो इस तरह से ब्लैक मनी जनरेट होती है. तो बहुत सालों से द पीपल हु वर होल्डिंग ब्लैक मनी, एक्यूमुलेटिंग ब्लैक मनी, देयर ब्लैक मनी बिकेम यूजलेस सडनली. लेकिन इसमें गवर्नमेंट से एक इसको मैनेज करने में कुछ मिस्टेक्स हुई.
क्या मिस्टेक हुई, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि आप ओल्ड करेंसी ले आओ बैंक में और एक्सचेंज करा के न्यू करेंसी ले जाओ। उसमें क्या हुआ, कई लोगों ने जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने अपने ओल्ड करेंसी को सीधे न्यू करेंसी में एक्सचेंज करवा लिया बिना डिस्क्लोज किए कुछ। उन्होंने अपने, कई बिजनेसमैन ने अपने वर्कर्स को लाइनों में लगा दिया, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लाइनों में लगा दिया और सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देके कि भाई ये एक्सचेंज करवा लो, और अपना कुछ कुछ ब्लैक मनी, ज्यादा तो नहीं करवा पाए पर काफी ब्लैक मनी उन्होंने इस तरह से न्यू करेंसी में एक्सचेंज करवा ली। तो ये बहुत अच्छा मेजर रहता अगर इस तरह की एक्सचेंज स्कीम ना होती। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि आपके पास जो भी ओल्ड करेंसी है आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ, एंड डिपॉजिट करवाते हुए आप बताओ, अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट है, लेट्स से 1 लाख से ऊपर का अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो बताओ आपके पास कहां से आए इतने पैसे, वो आप फॉर्म फिल करो। ऐसे में ये डायरेक्ट एक्सचेंज वाले नहीं करवा पाते क्योंकि वो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते जिनके पास ब्लैक मनी है, ठीक है, और अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता। तो ये डायरेक्ट कैश टू कैश एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए था उसमें। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Now next point is government indicates tax evasion will not be tolerated. गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है कि टैक्स इवेजन टॉलरेट नहीं होगी, क्योंकि एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद लोग सोचें अच्छा फिर से हम जमा करने शुरू कर देते हैं ब्लैक मनी, तो फिर से कभी भी डिमोनेटाइजेशन हो सकती है। अब ये डर तो रहेगा सबके माइंड में, तो Yes, sir. वो डिस्करेज होंगे दोबारा से ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करने में, तो टैक्स ज्यादातर लोग अपना प्रॉपरली पे करेंगे। सर पर बट अभी तो फिर भी अभी भी हो गया होगा फिर से ब्लैक मनी को कलेक्ट। हाँ, कुछ लोग अभी भी करते होंगे, तो वो अगर फिर सर, से ये डिमोनेटाइजेशन हो गया तो वो regulation फिर फंस जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा, जो जेन्युइन, जिनके पास कैश घर पे कुछ तो रखा ही होता है ना थोड़ा सभी के, तो जिनके पास ब्लैक मनी नहीं पर वैसे जेन्युइन ओल्ड करेंसी नोट्स घर पे रखे हुए थे, उन्होंने बैंक में जमा करवाए। बैंक में जमा करवाए और सबने वो पूरा पूरा अमाउंट न्यू करेंसी नोट में निकाला नहीं, थोड़ा जितनी उनको जरूरत थी निकाल लिया, बाकी बैंक में ही रहने दिया। तो उससे क्या हुआ, जो मनी, जो करेंसी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में थी, बैंकिंग सिस्टम के बाहर थी, वो बैंकिंग सिस्टम में आ गई। तो बैंक्स के पास अमाउंट अच्छा खासा एक एक्यूमुलेट हो गया, फ्रॉम विच दे कुड गिव मोर लोन्स। क्लियर? ओके सर। तो वो पैसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए, बैंकिंग सिस्टम में आ गए, जो उससे बाहर थे पहले। फोर्थ पॉइंट इज लेस कैश इकोनॉमी, और वी कैन से कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, नोट्स सर्कुलेशन में कम हो गए, तो डिजिटल पेमेंट्स एंकरेज हुई। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा लोग करने लगे, और डिजिटल पेमेंट से क्या होता है, एक तो कन्वीनियंट है, कैश आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, मिसप्लेस हो जाए, खराब हो जाए, उसकी टेंशन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगी ऑनलाइन जितनी होंगी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी पूरी रहेगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Now, what is the impact of digitalization of various sections of society? पुअर लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो अभी भी बहुत से डिजिटल इकोनॉमी के बाहर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम ये डिजिटल कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कैसे होती हैं। तो जो पुअर क्लास है, स्टिल लार्जली आउटसाइड डिजिटल इकोनॉमी। लेस एफ्लुएंट जो हैं, मतलब जो मिडिल क्लास आप कह सकते हो, they are becoming part of digital economy through Jan Dhan accounts, through RuPay cards and through other digital modes. फिर जो affluent class है, जो rich class है, they are fully conversant with digital transactions and they are fully using digital transactions. Here? Yes sir. Sir, Yes. सर डिमोनेटाइजेशन बहुत सडनली हुआ था, तो उस टाइम तक आरबीआई ने जो एक्स्ट्रा नोट छाप दिए थे, तो उनका क्या, या फिर जो नोट एक्सचेंज हुए थे तो उनको वही कर देते हैं, लाइक डिस्पोज ऑफ कर देते हैं।
हाँ, उनको श्रेड कर देते हैं, श्रेडिंग मशीन्स होती हैं, उनमें डाल के उनकी श्रेडिंग कर देते हैं. They are torn to very tiny pieces and destroyed. Okay, sir. Any other doubt? No, sir. No. Okay. So impact of demonetization on various things. First of all, on money and interest rates. Cash transactions decline हो गई, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए और सेविंग्स इंक्रीज हो गई. ठीक है. देन प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई, क्योंकि कई ऐसे बहुत सी ऐसी करेंसी थी जो वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आई, तो वो ओवरऑल प्राइवेट वेल्थ कम हो गई. सर प्राइवेट वेल्थ क्या होती है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के पास वेल्थ है. ओके. ठीक है. तो जो लोग नहीं डिस्क्लोज कर पाए, नहीं जमा कर पाए, नहीं एक्सचेंज कर पाए, वो सारी उन्हें खुद ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ी, डिस्कार्ड करनी पड़ी. तो ओवरऑल प्राइवेट वेल्थ कम हो गई. पब्लिक सेक्टर वेल्थ मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो वैसे ही ब्लैक मनी नहीं होती, सारी ट्रांजैक्शंस उनकी रिकॉर्डेड होती हैं, तो पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड. प्रॉपर्टी. बिल्डिंग. हाँ, तो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए. क्यों? क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए कैश ही नहीं है सफिशिएंट. हाई डिनोमिनेशन के नोट्स कम थे, तो इसलिए डिमांड कम हो गई प्रॉपर्टीज की और प्रॉपर्टीज के प्राइसेस कम हो गए. टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आए सामने जिन्होंने कहा कि ठीक है जी, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमारे पास कुछ ब्लैक मनी थी, हम डिपॉजिट करवा रहे हैं और उस पर पेनल्टी के साथ डिपॉजिट करवा रहे हैं. ऐसे भी कुछ लोग थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स इंक्रीज हो गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया. डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज्ड. ठीक है. एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स? सर पब्लिक सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो जरूरी है, मतलब हो सकता है उसमें भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो. कैसे? सर कोई ना कोई एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिसने कुछ छुपाया हो या जिसने कुछ रिकॉर्ड ना किया हो. कैसे बताओ? उसमें भी तो कैश होती ही होंगी, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी कैश के थ्रू डीलिंग या फिर कैश ट्रांजैक्शंस होती होंगी. जरूरी थोड़ी है सारी बैंक के थ्रू हो. लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो कैश ट्रांजैक्शंस भी होती है ना, सारी रिसीट्स के बेस पे होती हैं, सबकी रिसीट होती है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है. पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है? जैसे एमसीडी, डीडीए, एमटीएनएल, एलआईसी, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें कैश ट्रांजैक्शंस एक तो कम होती हैं, और जो होती भी हैं उनमें सब में रिसीट बनाई जाती है और प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है उनकी. ओके सर. ठीक है. यस सर. यहां तक क्लियर? यस सर. ओके. नाउ टेल मी द वे डिमोनेटाइजेशन वाज डन. यहां तक तो हो गया जो हमारे सिलेबस में है. अब थोड़ा सा इससे हटके बात करते हैं. जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुई, हाउ मेनी ऑफ यू फील इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड? हाउ मेनी फील इट वाज नॉट सो वेल मैनेज्ड? क्या उसमें अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? योर व्यूज ऑन इट. Sir, it was on a note, it was well managed, but sir मुझे ऐसा लगता है कि information बहुत लोग तक नहीं पहुंची. Okay. Poorer section was still giving 500 notes because they did not even know about कि something like that happened. And I also saw a lot of people जो अपने servants को भेज रहे थे पैसे exchange कराने के लिए. So there were some aspects that should have been dealt with in a better way. Yes, I agree. Anyone else? Sir, it was quite manageable to curb black money. I didn't get you, Saksham. Sir, it was quite manageable to curb black money. It was? Sir, it was manageable to curb black money. Okay. 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 So I am sharing my views on it. First of all, fake currency in circulation becomes useless with demonetization, as we discussed.
mostly high denomination notes are used in corrupt transactions such as bribery. लोग ब्राइबरी जब ब्राइब देते हैं किसी को तो वो जनरली हाई डिनोमिनेशन नोट्स में होती है, क्योंकि छोटे डिनोमिनेशन नोट्स बहुत बल्की हो जाएंगे कैरी करने में अगर कोई बड़ा अमाउंट किसी को ब्राइब की फॉर्म में देना है। हाई डिनोमिनेशन नोट्स अगर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो उसके साथ साथ करप्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, due to lack of high denomination currency notes, anti-social elements are not able to pay criminals to commit crimes like rioting, stone pelting, etc. बहुत से क्राइम्स जो होते हैं, राइट्स होते हैं, धरने होते हैं, ये पैसे दे दे के करवाए जाते हैं। जब हाई डिनोमिनेशन नोट्स नहीं होंगे सर्कुलेशन में, तो जिन क्रिमिनल्स को पैसे देकर ये काम करवाए जाते हैं वो मुश्किल हो जाएगा, उन्हें पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो और डिमोनेटाइजेशन के बाद देखा गया था कश्मीर में जो बहुत स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हो रहे थे आर्मी पर, वो एकदम से रिड्यूस हो गए थे। ये किसकी कुछ साउंड आ रही है पीछे? स्टॉप दिस प्लीज। या इफ थर्ड पॉइंट, इफ डिमोनेटाइजेशन इज डन विद इमीडिएट इफेक्ट, जैसे इमीडिएट इफेक्ट से ये हुआ था, तो उससे हुआ क्या, बहुत से जो ऑनेस्ट इनोसेंट लोग थे, they had to stand in long queues to deposit the old currency in the banks to get the currency exchanged. Many people, they were not able to make payments for treatment of their patients in hospitals, for buying food, for other emergency requirements. कई लोगों की तो डेथ हो गई थी लाइंस में खड़े खड़े कई दिन तक। तो इतनी ज्यादा इनकन्वीनियंस और हरासमेंट हुई थी लोगों को। उसके लिए क्या हो सकता था, गवर्नमेंट अनाउंस करती कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे ये नोट्स, लेकिन लेट अस से गवर्नमेंट 1 मंथ का टाइम दे देती कि 1 मंथ तक आप इनको डिपॉजिट करवा सकते हो बैंक में, उसके बाद से डिसकंटिन्यू करेंगे, इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो फिर एकदम से इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती। बट सर तब तक बहुत सारा ब्लैक मनी लोग मतलब क्या हो जाता, सर मतलब लोग कैसे ना कैसे मैनेज करके खरीद डिपॉजिट के कराई gold में देते। ये डिपॉजिट invest करके। गिव मी एन एग्जांपल, ऐसा क्या हो जाता जो अभी वाले में नहीं हुआ? सर अभी एकदम से हुआ तो थोड़ा सर मे बी वो अपनी मनी अपने रिलेटिव्स को थोड़े थोड़े पोर्शंस में ट्रांसफर कर देते और वो वापस उनको ट्रांसफर करते, तो वो ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो जाता। तो वो तो अभी भी हो सकता था, अभी भी हुआ होगा। बट सर टाइम पीरियड शॉर्ट था ना अभी। नहीं, टाइम पीरियड तो था ही नहीं, मतलब 8 बजे अनाउंसमेंट हुई, उसी रात 12 बजे से डिमोनेटाइजेशन था, लेकिन उसके बावजूद एक्सचेंज कराने और डिपॉजिट कराने के लिए तो गवर्नमेंट ने 2-3 महीने का टाइम दिया था ना। वही 2-3 महीने का मैं कह रहा हूँ, उस ओल्ड करेंसी को यूज करने के लिए भी दे देते गुड्स और सर्विसेज के बदले में। सर वो यूज ही कर लेते। हाँ सर, लाइक इफ आई हैड सम ब्लैक मनी तो मैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर लेती या कुछ खरीद लेती। कहाँ Yes, इन्वेस्ट sir. तो कैसे मेक आउट होता है? डे टू डे अपने फूड आइटम्स परचेज करने में, थोड़े बहुत क्लोथ्स परचेज करने में आप खर्च कर लेते, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं यूज हो जाते। बड़ा अमाउंट कहीं भी आप इन्वेस्ट करते, तो मैंने अगर गोल्ड खरीद लिया, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी गोल्ड खरीद लिया या आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, है ना, ये कर सकते थे। ये चीजें अभी भी हुई और वो पकड़े गए फिर बाद में, वो तब भी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इससे होता क्या, अगर यूज करना अलाउ किया जाता तो जिन लोगों को खाने के लिए दिक्कत आ गई, बहुत से ऐसे देयर आर करोर्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री जो डेली वेज अर्नर्स हैं, रोज का कमाते हैं और खाते हैं। अब उनके पास तो कुछ काम उन्हें मिल नहीं रहा, क्यों और जो कुछ एक उनकी सेविंग है थोड़ी सी, उसको वो डिपॉजिट करवाने में, एक्सचेंज करने में लाइनों में लगे हुए हैं, खाना खरीदने के पैसे नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और अगर कोई गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर भी देता, जैसा कि अभी भी कई लोगों ने किया था, तो वो पकड़े जाते हैं उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू। यस सर, गेटिंग इट? यस सर। Fourthly,
और डीमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है ये पहली बार हुई है, ये मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हुआ था डीमोनेटाइजेशन, लेकिन तब किसी को पता भी नहीं चला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले के जितने भी करेंसी नोट है 500 के, वो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद डिसकंटिन्यू होंगे, उन्होंने ये कहा था। तो उन 3 मंथ्स में वो सारे जिनके पास 2005 से पहले वाले थे, उन्होंने या तो डिपॉजिट करवा दिए या उनका कुछ ना कुछ खरीद दिया, जिससे खरीदा उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। 3 मंथ्स में बड़ा स्मूथली वो सारे नोट्स वापस आ गए और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। Fourth point, a lot of money is required for destroying the old currency and printing of new currency. तो बहुत एक्सपेंसिव भी था ये, और इतने सारे न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करने के लिए बहुत सारे पेड़ भी काटे गए, पेपर चाहिए था, तो एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म हुआ। Many businesses whose majority dealings were on cash basis, they were adversely affected for several days, क्योंकि ओल्ड करेंसी लोगों के पास थी नहीं, थी भी तो वो यूज नहीं हो सकती थी, तो उनका बिजनेस ही ठप हो गया था बहुत टाइम तक के लिए, जिनका मेनली कैश पे ही चलता था बिजनेस, जो छोटे छोटे फ्रूट वेजिटेबल सेलर हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए। So overall we can say demonetization is good if it is well managed. एक ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ क्रांति, इन्होंने सजेशन दी थी एक गवर्नमेंट को, बड़ी अच्छी सजेशन है, मोस्टली मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में 100 रुपीज से ऊपर की डिनोमिनेशन के नोट्स नहीं होते, 100 के भी नहीं होते इनफैक्ट बहुत सी कंट्रीज में। तो 100 से ऊपर के सारे नोट इन्होंने कहा कि बंद कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी बंद कर दिए उसके थोड़े टाइम बाद फिर निकाल दिए, जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था, 500 और 1000 के बंद किए, कुछ टाइम बाद 500 के नए आ गए, और सबसे खराब चीज तो क्या हुई, 2000 के भी आ गए, और भी बड़ी डिनोमिनेशन के जो पहले थे ही नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए, परमानेंटली बंद हो जाने चाहिए 100 रुपीज से ऊपर के नोट्स हमेशा के लिए, कोई नए नोट्स नहीं आने चाहिए फिर उस डिनोमिनेशन के, हाई डिनोमिनेशन के। सेकंड, सिर्फ 2 तरह के टैक्स रहे, 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब जब भी आपके बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक उस पे 2% टैक्स काट ले और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। इसी तरह से जब कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रही है तो जीएसटी 2% का, कोई भी चीज आप मार्केट से खरीद रहे हो, बेच रहे हो, 2% का उस पे जीएसटी काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दो। 2% ऐसा रेट है जो किसी को भारी भी नहीं लगेगा। अभी हम अराउंड 30-40% इनकम अपनी टैक्स में चली जाती है हमारी, तो वो 2% किसी को भारी भी नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन अभी से कहीं ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अभी हाई रेट के चक्कर में कई लोग पे ही नहीं करते, अपनी इनकम ही छुपाते हैं, फिर बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को तो वैसे ही कोई छुपा नहीं पाएगा। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस होंगी भी बैंक के थ्रू, जब 100 से ऊपर के नोट ही नहीं होंगे मार्केट में सर्कुलेशन में, और जो थोड़ी बहुत कैश ट्रांजैक्शंस होंगी उन पे 2% जीएसटी भी मोस्टली लोग ऑनेस्टली जमा करा देंगे। तो दिस गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसिडर इन माय ओपिनियन। एनी डाउट, एनी व्यूज? No, sir. Okay. So now we move on to the next heading, importance of business environment. Why are we studying about this business environment? Why is it so important? Because it directly affects the working of the business. How? Sir, if the environment good and efficient, employees and workers would, मतलब वो आना चाहेंगे, Yes. वो वर्क कर गुड कंडीशन। अगर स्टेबल रहा बिजनेस एनवायरनमेंट तो बिजनेस को बेनिफिट करेगा। Right. जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें सरवाइव करना मुश्किल होगा ऐसे एनवायरनमेंट में। ठीक है, हम कहीं पे घूमने भी जाते हैं तो पहले पता करते हैं उस जगह का वेदर कैसा है, किस तरह के कपड़े हमें लेके जाने हैं, और क्या क्या अरेंजमेंट्स करके जाने हैं, तो हम वहां पर कंफर्टेबली रह पाते हैं। अगर हम वहां का एनवायरनमेंट पता ही ना करें, वहां की वेदर कंडीशंस पता ना करें,
तो और ऐसे ही उठ के चले जाएं जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं और पता चले वहां पे बहुत ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारे लिए वहां पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यस सर। बिजनेस फर्म भी जहां पे ऑपरेट कर रही है उसे अपने एनवायरनमेंट पे क्लोजली नजर रखनी होगी। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से अपने बिजनेस को चला पाएंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज दे मे मेक सेवरल मिस्टेक्स एंड it will be very difficult to manage the business, right? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, so first point under importance, provides useful resources. बिजनेस फर्म को चलाने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं? ह्यूमन, कैश एंड Physical, Machinery. financial, फिजिकल रिसोर्सेज, Natural resources भी. हाँ फिजिकल रिसोर्सेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, रॉ मटेरियल्स। raw materials, हाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसे। working capital. हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज, द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर्स, द एम्प्लॉयज, ये सारी रिसोर्सेज बिजनेस को कहाँ से मिलती हैं? Business environment. अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, बिकॉज द बिजनेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। देन हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने एक फीचर पढ़ा था, इट इज डायनामिक। मतलब Prone to change. इट कीप्स चेंजिंग। तो अगर हम एनवायरनमेंट पे ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, वी विल कम टू नो व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज आवर बिजनेस एंड वी कैन अडेप्ट टू दोस चेंजेस इजीली। अगर हमें पता ही नहीं होगा एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो पता चलेगा दुनिया कहीं और निकल गई, हम पीछे रह गए, हम उसके हिसाब से एडजस्ट ही नहीं कर पाए जो चेंजेस हो रहे थे। Thirdly, helps in improving performance. If we monitor the environment properly, we keep changing our policies according to the environment, we keep changing our managing style according to the changes in environment, our business will be able to perform much better. We'll be able to take much better decisions for our business. Clear? यस सर। Next point, helps in identifying opportunities and getting first mover advantage. Business में जब भी कोई change होता है, that change can either be positive for our business or it can be Negative. Negative for our business. अगर वो change हमारे लिए positive होगा तो opportunity है Yes, जिसका sir. हम benefit उठा सकते हैं, और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो थ्रेट है। तो अगर हम चेंजेस को मॉनिटर करते रहें तो हमें कई पॉजिटिव चेंजेस जो बिजनेस में होने एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनमें अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। Sir, change in technology. ओके, Change in technological environment. The change in government policies. कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले सकते हैं? Sir, the increase of rate of taxation. Okay, increase in rate of taxation on certain goods. Yes. तो जिन्होंने Yes, sir. इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये थ्रेट हो गई बिजनेस के लिए, जिन गुड्स पे टैक्स बढ़ा, तो वो इस थ्रेट को पहले से एनालाइज कर लेंगे अगर, तो वो शिफ्ट कर जाएंगे किसी और गुड्स पे, ठीक है। और इस थ्रेट सर बट पहले से एनालाइज कैसे कर पाएंगे? जो समझदार लोग होते हैं वो थोड़ी विजन रखते हैं और फोरकास्ट करके चलते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब
Okay, tell me which are the leading companies in DTH, direct to home जो टीवी सर्विसेज हैं उसमें लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं? टाटा स्काई, Sony, डिश, टाटा स्काई डिश टीवी, और एयरटेल, है ना? ये 2-3 है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये सेक्टर ओपन किया DTH वाला, तो दीज वर द फर्स्ट वंस टू एंटर द मार्केट। अब क्या होता है जब कोई नया सेक्टर ओपन होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो लोग उस अपॉर्चुनिटी में पहले अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो कस्टमर्स के पास और कोई चॉइस है नहीं, यही 2-3 लोग हैं, तो ज्यादातर कस्टमर उन्हीं 1, 2, 3 जो भी शुरू में लोग आते हैं उन्हीं से सर्विसेज लेते हैं। और फिर अगर लोग उन सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहते हैं तो नए अगर ऑपरेटर्स आते भी रहें, कस्टमर्स डू नॉट प्रेफर टू स्विच टू दी अदर ऑपरेटर्स। तो जो शुरू में आ जाते हैं उन्हें मिल जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि ज्यादातर कस्टमर्स मार्केट शेयर उन्हें मिल जाता है। सेम थिंग विद LIC। LIC वाज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो ज्यादातर लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज उनसे ली हुई हैं। और सर्विसेज से अगर सेटिस्फाइड हैं तो नई कंपनीज के आने के बाद भी बहुत कम लोग नई कंपनीज से लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए आज भी मार्केट में लीडर है LIC लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट व्हेनेवर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, दोज फर्म्स जो पहले उसमें उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लेते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं, उन्हें ज्यादा मार्केट शेयर मिल जाता है। क्लियर? यस सर। इसी से रिलेटेड पॉइंट हम साथ साथ ही डिस्कस कर रहे थे, जो एग्जांपल आपने लिया था, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्निंग वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई नेगेटिव चेंज होने वाला है, ठीक है, तो हम पहले से उसको, उस थ्रेट को समझ के बच सकते हैं और नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि वो थ्रेट हमें एडवर्सली इफेक्ट ना करे। ठीक है, अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। किन के लिए? मास्क एंड सैनिटाइजर, द प्रोड्यूसर्स ऑफ मास्क, प्रोड्यूसर्स ऑफ सैनिटाइजर्स, सोप्स, Producers of essential goods. मेडिसिन्स। ठीक है, क्यों उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई, बढ़ने वाली थी। तो कुछ लोगों ने पहले से इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और जल्दी से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी लॉकडाउन से पहले ही, क्योंकि ये सिग्नल हमें मिलने शुरू हो गए थे। आपने कहा ना पहले से कैसे पता चलेगा, तो ये सिग्नल तो मिलने शुरू हो गए थे फरवरी से ही, जब फर्स्ट केस आया था इंडिया में। तो बाकी कंट्रीज का एक्सपीरियंस देखते हुए जो समझदार बिजनेसमैन थे उन्होंने आइडिया लगा लिया कि भाई इंडिया में भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, आप केस आने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने पहले से ही इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे थे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, जो नहीं कर रहे थे उन्होंने भी कुछ नहीं इनकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया। जिन लोगों ने इसी तरह से इससे आने वाली थ्रेट किन के लिए? बाकी मोस्टली बिजनेसेस के लिए ये थ्रेट है। ठीक है, तो थ्रेट से, जिन्होंने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया पहले से कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्रोडक्ट्स में, वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पहले ही कम कर ली और दूसरे प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो गए। कई ऐसे लोग आपको दिख रहे होंगे आजकल सोसाइटीज में, रोड्स पे, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, जो पहले नहीं दिखाई देते थे, नए लोग दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व किया आपने? yes sir. तो ये कौन है? ये वो हैं जो पहले रिक्शा चला रहे थे या और कोई काम कर रहे थे, अब क्योंकि उनकी वो एक्टिविटी बंद हो गई है तो उन्होंने इमीडिएटली फ्रूट्स का कार्ट एक खरीदा, फ्रूट्स वेजिटेबल सप्लाई, ताकि उनकी अर्निंग बनी रहे। तो वार्निंग सिग्नल को पहले से समझ के टाइमली उन्होंने अरेंजमेंट्स कर लिए और अपना ऑल्टरनेट एक और रेडी कर लिया। तो इस तरह से हम वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके थ्रेट से बच भी सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का दिया था। प्लास्टिक, Yes. पॉलीथीन Yes बैग, sir. पॉलीथीन बैग्स पता है कि बैन है और कभी भी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन उसकी हो सकती है। तो जो पॉलीथीन मेकिंग फर्म्स हैं, अगर वो समझदारी दिखाएंगे, वो पहले ही ज्यूट बैग्स की प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे या क्लॉथ बैग्स की प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे और उस सडन चेंज से, सडन थ्रेट से बच जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर।
नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए प्लान बना रहे होते हैं, पॉलिसीज बना रहे होते हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो प्लान्स, वो पॉलिसीज बहुत अच्छे होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, उनमें सक्सेस के चांसेस हमारे बहुत हाई होंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर हम बिना एनवायरनमेंट को कंसीडर किए अपने प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो हमारे फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Anyone No, No, sir. sir. up to here? No, sir. Okay. So now we will concentrate a bit on economic environment in some detail. Okay. हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंडिया में 1991 ऑनवर्ड्स एक मेजर चेंज आया। क्या चेंज आया? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, Global. जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं एलपीजी, राइट? इससे पहले की पॉलिसी क्या थी गवर्नमेंट की? सर कुछ बैरियर्स लगे हुए थे। हाँ, यस या एलपीक्यू, पहले वाली पॉलिसी थी एलपीक्यू। कैन यू गेस फुल फॉर्म? लाइसेंसिंग, परमिशन, कोटाज। मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो पहले आप लाइसेंस लो, गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशंस लो, और कोटा कि आप मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकते हो उसका कोटा गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आप इतने से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ था पहले? ताकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके इंडिया में। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथों में ही सारी पावर रहे, और इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर पाए और गवर्नमेंट का अच्छे से कंट्रोल रहे इकोनॉमी पे, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज शुड नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। तो ये पॉलिसी इंडिया में चलती थी पहले। फिर 90s में एक क्राइसिस, अर्ली 90s में एक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस में था इंडिया। इंडिया पे डेट बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि इंडिया ने लोन बहुत ले रखे हैं। तो उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रेशर में इंडिया ने ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव and finance minister was SMS, stands for सरदार मनमोहन सिंह। ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे जब ये पॉलिसी आई। अब इस पॉलिसी में क्या आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब removing all the barriers which were restricting the movement of goods and services. right, relaxation of entry and growth restrictions on business enterprises. कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो रिलैक्स कर दिया कि कर सकते हो इजीली। कोई अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करना चाहता है, उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो रिलैक्स कर दी गई। ठीक है। तो बिजनेस करना बेसिकली इजी बना दिया गया। क्या क्या इसमें हुआ? सक्षम, रीड दीज पॉइंट्स। एबॉलिशिंग, Sir, abolishing licensing requirement in the most of the industries except a short list. B point, most of the imports have been liberalized except for the small non-permit list of items. Removal of the restrictions on the movement of goods and services. Corporate tax rates and excise duties have been reduced. Firms have freedom to decide the scale of operation. Most of the firms can fix the prices of their goods and services freely. Easy availability of the permission to invite foreign technology and foreign investment. any doubt in these points, anyone?
सर सेकंड बी पार्ट समझा दो. Most of the imports have been liberalized except for a small non-permitted list of items. पहले बहुत सारे imports गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. अब मोस्टली प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो उन गुड्स को, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल लिस्ट विच कैन नॉट बी इंपोर्टेड. ओके सर. एनी अदर डाउट? Sir, G point. Yes, Satyam? Sir, G point. D for Delhi. G. G for Goa. Easy availability of permission to invite foreign. Indian firms किसी foreign country से investment भी ले सकती हैं अपने फॉर्म में, अपनी कंपनी में, और टेक्नोलॉजी भी खरीद सकती हैं इजीली. पहले उस पर भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती थी. जैसे लेटेस्ट इसमें अगर आपने सुना हो, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव करी है. मींस फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एयर इंडिया नाउ. पहले वो रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं. Yes, sir. क्लियर? सेकेंड Okay, कंपोनेंट ऑफ दिस पॉलिसी, न्यू, जिसे हम एनईपी कहते हैं शॉर्ट में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी. कई बार क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि लिखा होता है क्वेश्चन में एनईपी, तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या नई चीज आ गई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. दैट इज नथिंग एल्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब encouraging private sector. Private sector. allowing and encouraging private sector in most of the productive activities. अब ये गवर्नमेंट ने दो तरह से किया. पहले क्या होता था, ज्यादातर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे जो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर उसमें ऑपरेट कर ही नहीं सकता था. लेकिन इस पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि प्राइवेट सेक्टर भी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अपनी एंटर कर सकता है, अपनी कंपनीज स्टार्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया. ठीक है? उसके अलावा बैंक्स खैर बहुत पहले प्राइवेटाइज हो गए थे. इस पॉलिसी से पहले भी कई प्राइवेट बैंक आ गए थे, इसके बाद और भी ज्यादा आ गए. टेलीकम्युनिकेशन, पहले सिर्फ एमटीएनएल और बीएसएनएल था, टेलीकॉम कंपनीज. इस पॉलिसी के बाद और बहुत सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को अलाउ किया गया. ठीक है? जिसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, ये सब आए. सो वन वे वाज दिस, अलाउइंग private sector to operate in those activities which were earlier reserved for only the government sector. Second, दो existing government companies थी, उनमें भी कईयों के शेयर गवर्नमेंट ने सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर को. तो वो दूसरा तरीका था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया. सो वन इज ओपनिंग द पावर, ऑयल, बैंकिंग, insurance and communication sectors to private enterprises which were earlier reserved only for public sector. Second, डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो पब्लिक कंपनीज के गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर बेचती है जब गवर्नमेंट, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थ्रू सेल ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर. क्लियर? Yes, sir. थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब interaction with other nations and yes, the process of integration of the whole world economy into one huge market. पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक ह्यूज मार्केट में इंटीग्रेट कर देना थ्रू रिमूवल एंड रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन कंट्रीज. ठीक है? अगर एक ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी हो, जो कि नहीं है, अभी तक नहीं है, अगर ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी हो तो उसमें क्या होगा? All products can flow freely from any country to any country. Capital can move from any country to any country. Information and technology can flow freely from anywhere to anywhere in the world. Free movement of people anywhere in the world.
कॉमन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये बहुत जरूरी है। अगर सारी चीजें फ्रीली मूव करेंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट्स चाहिए हमें, कि जो डिस्प्यूट्स होंगे बिटवीन पीपल ऑफ लेट्स से कंज्यूमर ऑफ वन कंट्री एंड प्रोड्यूसर ऑफ अनदर कंट्री, और वन बिजनेस ऑफ वन कंट्री अनदर बिजनेस ऑफ अनदर कंट्री, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट्स चाहिए, and a global governance perspective. Any doubts in these? No, sir. No, sir. Okay, a few steps taken by the government of India in the direction of globalization. Anshika, please read these points. Yes, sir. First, easy approval of foreign direct investment in high priority industries. Second, removal of restrictions on import and export of goods and services. Third, reduction of import duty and liberal permission to import. Fourth, increased flow of capital from foreign countries and vice versa. 5, free flow of latest technology. Right. Any doubt in any of these points, anyone? No, sir. Okay. So please explain the third point. Reduction of import duty. बहुत से गुड्स के इंपोर्ट पे हैवी ड्यूटीज होती थी पहले। टैक्स, ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स, कि अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ड्यूटीज जनरली पहले हाई होती थी, और ये क्यों होती थी कि ताकि हमारे कंट्री के अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकें, और ऐसा ना हो बाहर से सस्ते गुड्स ला के और हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं। लेकिन अब उन इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी रिड्यूस कर दिया गया है, एंड परमिशन, कुछ भी इंपोर्ट करने की परमिशन ज्यादा इजीली मिल जाती है। पर सर अगर टैक्सेस हाई होते हैं इंपोर्ट के, तो वो तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है ना, हमारी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। हाँ, तो फिर ये स्टेप क्यों लिए गए, मतलब ये स्टेप क्यों गवर्नमेंट ले रही है? As I told you in the beginning, under the pressure of World Bank and IMF. और वर्ल्ड बैंक और IMF में मेनली डोमिनेट कौन करते हैं? अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज। वो चाहते थे कि उनकी कंपनीज इंडिया में आए, उनके गुड्स इंडिया में बिकें ताकि उनका बिजनेस बढ़े, तो उस प्रेशर में ये चीजें की गई हैं। ओके सर, ठीक है। और अगर इंडिया के ऊपर इतनी डेट ना होती, इतने लोन्स ना होते, तो शायद इंडिया को उन प्रेशर्स में आने की जरूरत भी नहीं थी। वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट हमारी लोन इतना लेती है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, उस वजह से ये प्रेशर में आए। Okay, according to the new economic policy, what changes the government has made? Saloni, please read these points. Yes, sir. Industrial policy changes. तो मेरी उसमें दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? ऐसा क्यों? सर अब दिख गया, वो स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हुई थी नीचे। ओके ठीक है, पढ़ो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी G licensing of several industries except 6 specified ones. Many industries reserved for public sectors may have been de-reserved. Disinvestments have been done in many public sector industries. Up to 100% FDI has been permitted in many industries. Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has been set up to promote foreign investment. Permission granted for technology agreements with foreign companies. Trade policy changes. Trade policy changes: abolition of service tax on all exports, simplification of export procedures, establishment of biotechnology parks and special economic zones for handicrafts, establishment of new trade and warehousing zones. And last point. Doing away with requirement of bank guarantee in case of exporters with a turnover of above rupees 5 crores. Right. Any doubt in any of these points, anyone? No, sir.
Sir, please explain the first point. Of trade policy or industrial policy? Industrial policy. Delicensing of several industries except 6 specified ones. पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, अब उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 रह गई हैं जिनमें लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, बाकियों में जरूरत नहीं है. Okay, sir. Any other doubt? No, sir. Okay, so we stop today's session over here. And now anyone who wants to ask a doubt can click on raise hand. No one? Okay, I'm unmuting all. If you want to ask, you can. ठीक रखा होगा फिर रुक जाओ, क्लास चल रही है मेरी, उठना पड़ेगा. No one? Okay, so we wind up today's session over here. Thank you, everyone. Thank you, Excuse me, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.